اور اب خبریں تفصیل سے۔ جنوبی دہلی میں نوراتری پر میٹ کی دکانیں بند کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ جنوبی دہلی میونسپل کارپوریشن کے میئر مکیش سریان نے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوراتری کے دوران عقیدت مند میٹ یعنی گوشت سے پرہیز کرتے ہیں، لہٰذا ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے میٹ کی دکانیں بند رکھی جائیں۔ مہاراشٹر نونرمان سینا کے صدر راج ٹھاکرے نے مسجدوں پر لگے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹانے اور مدارس میں جاری سرگرمیوں کی جانچ کرانے کی مانگ کی ہے۔ راج ٹھاکرے کے بیان پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے مفتی اسماعیل قاسمی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مفتی اسماعیل قاسمی نے مساجد اور مدارس میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے راج ٹھاکرے کو مسجد آنے کی دعوت دی ہے۔ اذان دینے کے لیے سپریم کورٹ نے مائک پر ایک حد مقرر کی ہے، اس حد کے اندر رہتے ہوئے اذان دی جا سکتی ہے اور ہم قانون کے مطابق اذان دے رہے ہیں، اس لیے لاؤڈ اسپیکر زبردستی ہٹانا یہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی اور مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ جھگڑے کی نوبت آئے گی اور شاید راج ٹھاکرے صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مہاراشٹر کے اندر جو ہے ہندو مسلم دنگا ہو، اس پس منظر میں اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ اور یہ کہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے معلوم نہیں، ہم راج ٹھاکرے صاحب کو دعوت دیتے ہیں، کبھی بھی مسجدوں میں آ جائیں، آ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے۔ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے اور ہم راج ٹھاکرے صاحب کو ہی نہیں، ہر وہ شخص جو فرقہ پرستی کی بات کرتا ہے ہم اس کو کہیں گے مسجد میں آ کر کے وہ خود دیکھ لیں۔ اور رہ گیا ای ڈی کا معاملہ، جو مدرسوں کی طرف جانے کی بات کی جا رہی ہے، ای ڈی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ مدرسے جو ہے لوگوں کے تعاون پر چلتے ہیں اور وہاں پر جو ہے دین کی دھارمک تعلیم دی جاتی ہے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جو ای ڈی سے ریلیٹڈ ہو۔ اس لیے راج ٹھاکرے صاحب کا یہ بیان صرف سرکار کو پریشان کرنے کے لیے اور مہاراشٹر کے اندر ہندو مسلم دنگا بھڑکانے کا ایک پروگرام لگتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو سیکولر اور سنجیدہ مزاج لوگ ہیں وہ ان جیسی باتوں پر دھیان نہیں دیں گے۔ راج ٹھاکرے کے ذریعے مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کو لے کر جو بیان بازی کی گئی تھی اس پر مہاراشٹر کے کابینی وزیر اسلم شیخ نے ناراضگی جتائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب انتخابات آتے ہیں تو اس طرح کی بیان بازیاں ہونے لگتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس پر کارروائی ہوگی۔ اب چناؤ جو ہے ان مدعوں پہ لڑے جائیں گے، برقعے پہ لڑے جائیں گے، کھانا کون کیا کھائے گا اس پہ لڑے جائیں گے، اور اس طریقے کی بے بنیاد باتوں پہ لا کے مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ آنے والے چناؤ کو مہانگر پالیکا کا چناؤ ہے، وہ پانی کے مدعے پہ ہونا چاہیے، سڑک کے مدعے پہ ہونا چاہیے، فٹ پاتھ کے مدعے پہ ہونا چاہیے، لوگوں کے جو جیون میں کیا بیسٹ کر سکتے ہیں ان مدعوں پہ ہونا چاہیے۔ اور تو جب بھی کوئی چناؤ ہوتا ہے تو اس طریقے کی واہیات باتیں کر کے جو ہے ایک دوسرے کمیونٹی کو جو ہے لڑانے والی بات کرتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ کیا اگر لا اینڈ آرڈر کی سمسیا ہوتی تو کیا کارروائی کی جائے گی؟ راج ٹھاکرے پہ سرکار کارروائی کرے گی؟ لا اینڈ آرڈر کی سمسیا چاہے کوئی بھی ہو، اگر قاعدہ کوئی ہاتھ میں لیتا تو اس کے اوپر ایک ہی طریقے سے کارروائی ہوتی ہے، چاہے میں ہوں، چاہے راج جی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور اس وقت ایک اہم خبر جموں کشمیر کے شوپیاں سے خبر آ رہی ہے۔ چوٹی گام میں ملیٹنٹوں نے ایک پنڈت پر فائرنگ کی ہے، یہ خبر آ رہی ہے۔ پنڈت سونو کمار کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر سے یہ اہم خبر آ رہی ہے۔ جموں کشمیر کے شوپیاں سے خبر یہ ہے کہ ملیٹنٹوں نے وہاں فائرنگ کی ہے اور فائرنگ کے زد میں ایک پنڈت آئے ہیں جن کا نام بتایا جا رہا ہے سونو کمار کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ لگاتار جموں کشمیر میں کئی جگہوں پر فائرنگ کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہاں پر سری نگر میں ایک جگہ فائرنگ ہوئی تھی اور اس فائرنگ میں سی آر پی ایف کے جو اہلکار ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا تھا۔ اب جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق شوپیاں میں ملیٹنٹوں نے فائرنگ کی ہے۔ اس میں پنڈت سونو کمار کو تشویشناک حالت میں وہاں سے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کی شوپیاں سے یہ خبر موصول ہوئی ہے۔ شوپیاں کے چوٹی گام میں ملیٹنٹوں نے فائرنگ کی ہے اور ایک پنڈت پر فائرنگ کی گئی ہے۔ پنڈت سونو کمار کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں، بات اور خبریں رمضان المبارک سے جڑی۔ انزل فيه القرآن هدى للناس
दुनिया भर में 2 साल बाद रमजान की रौनकें वापस लौटी हैं। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में भी रमजान की रौनकें पहले रोजे के मौके पर देखी गईं। तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा शहर की तमाम मसाजिद में इफ्तार का एहतमाम किया गया। अक़ीदत व एहतराम के साथ नमाज तरावीह अदा की जा रही हैं और शहर में रमजानुल मुबारक की रौनकें लौट आई हैं। तमाम मसाजिद में मुसल्लियान की कसीर तादाद नमाज तरावीह में शरीक रही। बेशतर मसाजिद में पहले दहे में 3 पारे कुरान मजीद सुनाए जा रहे हैं। शहर के तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावीह का सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। मुसल्लियान की सफ़ें सहन को पार करती नजर आईं। इतना ही नहीं, नमाज फज्र में भी अक्सर मसाजिद में मुसल्लियों की तादाद गुज़श्ता दिनों के बजाय या आम दिनों के बजाय बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह नांदेड़ शहर के बाज़ारों में भी चारों तरफ रौनक आ गई है। रोज़ा इफ्तार के लिए फल, खजूर और दीगर लवाजमात की खरीदारी के लिए रोज़ादारों की हलचल से बाज़ारों में चहल पहल का माहौल दिखाई दे रहा है। नांदेड़ के कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाका दिगलो नाका की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर रोज़ा इफ्तार के लिए लोग कसीर तादाद में नजर आ रहे हैं। 2 सालों से कोरोना की वजह से रमज़ान में भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं, इसलिए लोग बहुत महदूद होकर रमज़ान का एहतमाम कर पा रहे थे। लेकिन अब जबकि हालात मामूल पर आ गए हैं तो लोगों को खुलकर खरीदारी का मौका भी मिला है। रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान जारी है। अजमेर में भी रोज़ादार इबादतों में मशगूल हैं। दरगाह में अंजुमन की जानिब से इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम किया जाता है। साथ ही दरगाह के खुदाम के ज़रिए भी इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। दरगाह की सीढ़ियों से लेकर ख्वाजा के आस्थाने तक दस्तरखान बिछाए जाते हैं और इफ्तार का एहतमाम किया जाता है और यहाँ पर हर मजहब और मिल्लत के लोग इफ्तार में शामिल होते हैं। जितने भी ज़ायरीन खुद्दाम ख़ाजा साहब के घर में रहते हैं उनका इंतज़ाम खुद्दाम ख़ाजा साहब खुद करते हैं। ज़ायरीन जो खुद्दाम ख़ाजा साहब के घरों में नहीं है उनके इंतज़ाम के लिए सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम खुद्दाम ख़ाजा साहब करते हैं। ज़ाती तौर पर भी करते हैं और ख़ास तौर पर अफ्तारी सहरी का इंतज़ाम अंजुमन की जानिब से पूरा किया जाता है। उसके अलावा दूसरा कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इस सहरी का अफ्तारी का इंतज़ाम करती हो। पर्सनल लोग तो करते हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि दूसरी जमात, वो कोई ऐसी जमात नहीं है खुदाम के अलावा जो शहरी। कोरोना वबा के दौरान माशी तौर से बदहाल हुए लोगों की खुसूसी माली इमदाद की अपील की जा रही है। इलाहाबाद में मकामी दारुल क़ज़ा के मुफ्ती सैफुर रहमान ने लोगों से ज़रूरतमंदों की माली इमदाद के लिए आगे आने को कहा है। मुफ्ती सैफुर रहमान का कहना है कि माह रमज़ान में ज़कात के अलावा भी लोगों की माली इमदाद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा माशी बदहाली का शिकार है। ऐसे में मुखय्यर और साहिब हैसियत अफराद लोगों को माशी तौर पर खुद कफील बनाने में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। वाजिबी ज़कात है, अगर और महीने में निकाला जाए तो उसका सवाब अलग मिलता है। रमज़ान के महीने में निकाले तो एक फ़र्ज़ की अदायगी का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर है। इस वजह से जो है मुसलमान इसमें निकालता है। और ज़कात के अलावा भी एक मोमिन का दूसरे मोमिन पर हक़ है। अगर कोई यतीम है, बेवा है, मिस्कीन है, ज़रूरतमंद है, अगर वो आ जाए और आप ज़कात निकाल चुके हैं लेकिन अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, तो इस महीने में उन लाचार और ज़रूरतमंदों, बेवाओं, बेसहारा लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। और इसको कहते हैं सदक़ात नाफिला। और एक और सदक़ा है जिसको सदक़ा फ़ित्र कहते हैं, वो भी गोया रमज़ान में अदा किया जा सकता है, अगरचे वाजिब होता है वो ईद की सुबह को। तो सदक़े और खैरात का बहुत एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि और महीनों से ज़्यादा इस महीने में अजर और सवाब मिलेगा। मुंब्रा में माजूर बच्चों की तालीम और तरबियत और इलाज और मुआलजे का काम करने वाली समाजी तंजीम उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से गरीब खानदानों में रमज़ान का राशन तकसीम किया गया और यह सिलसिला रमज़ान में हर हफ्ते चलेगा। साथ ही यहाँ एक ऐसा स्टॉल लगाया गया है जिसमें लोग अपने घर के पुराने कपड़े, बर्तन वगैरह रख जाते हैं और ज़रूरतमंद आकर यहाँ से बिला रोक टोक अपने मसरफ की अशिया ले जाते हैं। उम्मीद फाउंडेशन के दायरे एहतमाम हर साल रमज़ान के इस मुबारक महीने में ज़रूरतमंदों में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अनाज की तकसीम करते हैं। ये तमाम अनाज ख़ास तौर पे बम्बई के मुज़ाकरात इलाके से। इस साल रमज़ान कई मानों में अहमियत का हामिल है। 2 साल के बाद ये पहला मौका है कि मुसलमान पूरे तुज़्को एहतशाम से रमज़ान का एहतमाम कर रहे हैं।
बाजार में रौनक लौट आई है। फ्रूट मार्केट में भी खजूरों की भरमार है। ग्राहकों को इस बात का इत्मीनान है कि महंगाई के दौर में इन्हें खजूर मुनासिब दाम में दस्तयाब हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दो साल लॉकडाउन की मार झेलने वाले व्यापारी और ग्राहक दोनों के लिए इस साल का रमजान खुशियों का पैगाम लाया। महाराष्ट्र वो पहली रियासत बन गई जिसने बाज़ाब्ता कोरोना से निजात का ऐलान किया और रियासत के अवाम को रमजानुल मुबारक और दीगर त्योहार धूमधाम मनाने की छूट दे दी। ये पहला मौका है कि बाजारों में रौनक लौट आई है। साथ ही खजूर की कीमतों में गिरावट ने रोजेदारों की खुशियों को दोबाला कर दिया है। हमारे पास हर साल 30 से 35 नमूने की पेंट खजूर रखी जाती है जो मदीना, ईरान, इराक, मस्कत, ओमान कई देशों से इंडिया में आयात होती है और हमारे पास बॉम्बे से आयात होती है। इसके अलावा खजूर की जो रेंज होती है 100 रुपये से शुरुआत होती है तो 1500 रुपये किलो तक खजूर होती है। मदीने की खजूर ये साल काफ़ी रेट कम हो चुके हैं, जिसके जैसा सफ़ावी कलमी जो पिछले वर्ष 600 रुपये किलो थी, ये टाइम 400 रुपये का भाव निकला उसका। रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, इसमें खजूर का बहुत एहतमाम होता है और खजूर रोज़ा खोलने के लिए खजूर ज़रूरी होती है और खजूर के मतलब अलग अलग किस्में हैं और हम ढूंढ के कहाँ अच्छी मिल रही है, कहाँ सस्ती मिल रही है वो देख के लेते हैं। अभी एक दुकान पे आए, यहाँ अजवा खजूर देखने को मिली जो 600 रुपये का भाव है। रमजान मुबारक में खजूर के बगैर अफ्तारी का तस्वुर मुहाल है। लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका है। औरंगाबाद की फ्रूट मार्केट में खजूर के हमा अक़साम की भरमार है। औरंगाबाद शहर में 100 से लेकर 1500 रुपए फी किलो तक खजूर दस्तयाब है, जिनमें अजवा, अंबर, कलमी, बरारी, कीमिया, मबरूम और सफ़वी काबिल जिक्र हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। और इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये अहम खबर है। चोटी गांव में मिलिटेंटों ने एक पंडित पर फायरिंग की है और पंडित सोनू कुमार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ब्रेक से पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी। वादी में फायरिंग के वाक़यात में अचानक का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, जहां चोटी गांव में, शोपियां के चोटी गांव में मिलिटेंटों ने एक पंडित को अपनी गोलियों का निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि पंडित सोनू कुमार काफ़ी नाजुक हालत में है और उन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस फायरिंग के पीछे वजह क्या है, मिलिटेंटों में कौन लोग शामिल हैं, किस ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है और क्या इन्होंने जानबूझकर सोनू कुमार को निशाना बनाया या वो फायरिंग का शिकार हो गए, ऐसे कई सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। इस बारे मज़ीद तफसीलात जैसे जैसे हमारे तक पहुँचेगी हम आपको बताते रहेंगे। इस वक्त अहम खबर ये है कि चोटी गांव में, जम्मू कश्मीर के शोपियां के चोटी गांव में फायरिंग का एक वाक़या पेश आया, जिसमें मिलिटेंटों ने एक पंडित पर गोली चलाई है और पंडित सोनू कुमार की हालत अभी तशवीशनाक बताई जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर। ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप न्यूज़ 18 उर्दू पर देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये खबर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां ज़िले में चोटी गांव इलाके में मिलिटेंटों ने एक पंडित को गोलियों का निशाना बनाया है। पंडित सोनू कुमार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अभी उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। और ये फायरिंग किन हालात में वहाँ पर हुई, फायरिंग के लिए किसी ग्रुप ने क्या जिम्मेदारी ली है और क्या ये पंडित सोनू कुमार को जानबूझकर निशाना बनाया गया है या फिर फायरिंग के जद में ये आ गए, ऐसे कई सवाल हैं जिस पर सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन ये अहम है कि ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं और न्यूज़ 18 उर्दू सबसे पहले आप तक ये तस्वीरें पहुँचा पा रहा है। आप देख सकते हैं ज़ख्मी हालत में उस शख्स को, जिनका नाम सोनू कुमार बताया जा रहा है, पंडित सोनू कुमार, उन्हें जो है एम्बुलेंस के ज़रिए वहाँ अस्पताल ले जा रहा है। उस वक्त ये तस्वीरें हैं
पंडित सोनू कुमार को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर से ये खबर है। शोपियां जिले के चोटी गांव में फायरिंग का ये वाकया पेश आया है। आगे बढ़ते हैं। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत औरंगाबाद शहर में 72 स्कूल चलाए जाते हैं, जिनमें उर्दू मीडियम के 28 स्कूल और 42 स्कूल मराठी मीडियम के हैं। उर्दू मीडियम स्कूलों के जिम्मेदारों का कहना है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में हेड मास्टर के 7 पोस्ट पिछले 18 महीनों से खाली हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी के बावजूद इन ओहदों को नहीं भरा जा रहा है। तालीमी जहदकारों का इल्जाम है कि कॉरपोरेशन हुक्काम उर्दू मीडियम स्कूलों पर मराठी मीडियम के हेड मास्टर का तकर्रुर करने के फिराक में है, इसलिए हेड मास्टर की तकर्रुरी में जानबूझकर टाल मटोल की जा रही है। प्योरली हमारे पास जो 28 स्कूल उर्दू मीडियम के औरंगाबाद कॉरपोरेशन में चलते हैं, उसमें प्योरली 7 जो है हेडमास्टर ग्रेड के हेडमास्टर की ज़रूरत है, और वो 7 हेडमास्टर जो ग्रेड के वहाँ आएंगे तो वो प्योरली उर्दू स्कूल है, और 3 जो 10 प्रमोशन कर रहे हैं तो 3 मराठी के आ रहे हैं। लेकिन टेंगले साहब ने कहा कि लिस्ट अगर कॉमन भी बनती है तो उससे कोई आपको लेना देना नहीं, आपके जो उर्दू स्कूल है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू स्कूलों में उर्दू के हेडमास्टर हम देंगे। उन्होंने तयखुन दिया। अगर एचएम उर्दू मीडियम के उर्दू स्कूल में अगर है और मराठी मीडियम के स्कूल में मराठी का अगर एचएम है, हेडमास्टर अगर है, तो वहाँ की क्वालिटी के ऊपर अच्छा असर उसका हो सकता है। इसलिए हमारी ऑल महाराष्ट्र माइनॉरिटी जो इसकी सोसाइटी संगठन हमने बनाई है, उसके ज़रिए से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरे पोस्ट है उर्दू मीडियम के जो स्कूल्स है उसमें उर्दू मीडियम की एचएम होना चाहिए, और मराठी मीडियम की जो स्कूल है उसमें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सर सैयद एकेडमी में आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम की मुहिम 1898 से 1920 कदम ब कदम का इजरा वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के हाथों अमल में आया। मज़कूरा किताब माहिर सर सैयद डेविड लिलियट और कैल मिनाओ के 1974 में शाया आर्टिकल का उर्दू तर्जुमा है, जिसे नौजवान स्कॉलर अब्दुस्सबूर क़िदवाई ने लिखा है। इस मौके पर मुक़र्रिर ने कहा है कि ये उर्दू तर्जुमा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के क़याम के अदवार को समझने और उस दौर के नशेब व फराज को समझने में माविन साबित होगा, और जो लोग भी इन मौज़ूआत पर तहक़ीक़ करेंगे ये उन लोगों के लिए कारआमद रहेगा, और ख़ास तौर से शायकीन अलीगढ़ तहरीक इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। प्रोफेसर गेल मिनो और डेविड लिलियट ने अंग्रेज़ी में लिखी थी और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शाया हुई, और ये जो है दरअसल मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो क़याम की जो मुहिम थी, यानी 1898 से सैयद अहमद के इंतकाल से लेके यूनिवर्सिटी के क़याम तक, उसको मुहित है। और इसमें जो जो मसाइल अंदर पेश आए मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहरीक में, और उसकी जो क्या क्या कामयाबियाँ हुई, किस किस किस्म की इसमें दिक्कतें पेश आईं लेजिस्लेटिव तौर पे, एग्जीक्यूटिव तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, और जो हमारे रहनुमा और हमारे अकाबरीन हैं जिनका हम जिक्र सुनते आए हैं, उन पर एक नया पहलू हमको मिलता है, और उर्दू में इसका ये पहला तर्जुमा ख़ास तौर पर मुहक़्क़ीन के लिए और शायकीन अलीगढ़ तहरीक के लिए नहायत ही मुफीद होगा। आज जो इस किताब का इजरा अमल में आया है वो किताब सर सैयद के इंतकाल 1898 से लेकर 1920 यानी जब यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया उस वक्त तक जो तहरीक चलाई गई एमए कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दर्जा हासिल कराने के लिए, उसके तमाम नशेब व फराज का इस किताब में ज़िक्र है। ये किताब ओरिजिनली एक आर्टिकल पर बेस्ड है जो डेविड लिलियट और गेल मिनो ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जर्नल में लिखा था 1974 में। उस आर्टिकल का ये उर्दू में तर्जुमा अब्दुस्सबूर क़िदवाई साहब ने किया है, जो लंदन यूनिवर्सिटी में एमए कंपैरेटिव लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। महाराष्ट्र की पावरलूम सनत दम तोड़ रही है, उसे बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसीलिए रियासती महकमा टेक्सटाइल ने पावरलूम सेंटरों से नुमाइंदा अफराद को चुनकर एक कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में जाकर पावरलूम के मौजूदा हालात और मसाइल का जायजा लेगी। मालेगांव शहर के हज हाउस में मज़कूरा कमेटी ने एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें पावरलूम सनत से जुड़े अफराद मदऊ थे। उनसे उनके मसाइल का हल निकालने के लिए मशवरे लिए गए। इस मीटिंग के बाद बुनकरों ने इत्मीनान का इजहार किया है। हुकूमत की जानिब से पावरलूम सनत की बका के लिए कोई कदम तो उठाया गया। इन लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार सरकारी सतह पर ठोस इक़दामात किए जाएंगे।
गुज़श्ता 2 सालों से कोविड के सबब मामूलाती ज़िंदगी पूरी तरह से मुतासिर थी, ताहम कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात जारी रखी। ऐसे ही जाबाजों की हौसला अफजाई के लिए अकोला की महात्मा गांधी एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अमरावती, बुल्ढाना, वाशिम और अकोला अजला के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर आइंदा के लिए तालीमी सरगर्मियों को मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़म किया गया। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर हाजी सैयद कमरुद्दीन ने सोसाइटी के ऐसे इक़दामात की सताइश की। भी हम लोग बताए कोरोना खत्म हो चुका है और बच्चों को जोश दिलाया कि बेटा आप तालीम हासिल करो, तालीम में आगे चले जाओ, क्योंकि आप 20 साल पीछे चले गए हो। माइनॉरिटी मुस्लिम के बच्चे, यकीन के साथ कर रहा हूं मैं, ऑब्जर्व कर रहा हूं मैंने कि हम लोग बहुत पीछे चले गए। ये हमारा मिशन था। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने मुल्क की सतह पर एहतजाज शुरू किया है। औरंगाबाद में कांग्रेस के जिला और शहर यूनिट इस मामले में पेश है। कांग्रेस महंगाई को लेकर सरापा एहतजाज बनी हुई है, लेकिन पुलिस और जिला इंतजामिया की पाबंदियों के सबब कांग्रेस लीडरों को रैली और जुलूस की इजाजत नहीं दी जा रही है, इसलिए धरनों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस लीडरों का इल्जाम है कि मोदी हुकूमत एक फिल्म की तशहीर के लिए इसे टैक्स फ्री कर सकती है, लेकिन गुर्बत और महंगाई से परेशान आवाम के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। कांग्रेस ने फौरी महंगाई कम कराने और नौजवानों को रोजगार का मुतालबा किया है। गैस, डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेस की जानिब से मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। अमरावती के एयरविन चौक पर कांग्रेस की जानिब से मोदी हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में जिला भर से कांग्रेस अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस लीडर और महाराष्ट्र की काबीना वजीर यशोमती ठाकुर ने मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। कर्नाटक में मुस्लिम ट्रेडर्स का बॉयकॉट और हलाल गोश्त जैसे मामलात को लेकर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करने पर रायचूर में CPI-M पार्टी के लीडरों ने दाएं बाजू की तंजीमों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। रायचूर में वाक़ा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी प्रोग्राम में जिला के मुख्तलिफ इलाकों के कम्युनिस्ट लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर कम्युनिस्ट लीडरों ने फिरका परस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हुकूमत से मांग की है। कर्नाटक के रायचूर जिले के अवाम को मजीद 2 नई ट्रेनों की सहूलत हासिल हुई है। कन्याकुमारी से पुणे जाने वाली पहली नई ट्रेन आज सुबह 8 बजे रायचूर पहुंची, जबकि पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली नई ट्रेन आज दोपहर 12 बजे रायचूर से रवाना हुई। साउथ सेंट्रल रेलवे यूजर्स कमेटी के रुकन बाबू राव ने इस मौके पर बताया कि नई ट्रेनों की शुरुआत से गुलबर्गा, पुणे, आदोनी और दीगर इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों और ताजिरों को काफ़ी सहूलत हासिल हुई है।